Contusions. No sense. Haha. तुमको बैटिंग मांगता है. Who are you? और हम करेंगे Josie review. Ronaldo, give me a pass, brother. मिशन कश्मीर फ्रॉम मीशो. Himmat Singh is back, bro. ऋतिक रोशन चल के आ रहा है कुत्ते के साथ. कुत्ता नहीं है, भेड़िया है. अरे देख लो. Oh, हुजूर. Like, share and subscribe जरूर. तुमको बैटिंग मांगता है. Hey, तुम बैटिंग करेगा. तुम साला बैटिंग करेगा. Shake तुमको my hand. शेक छोड़ो. तुमको Shake शर्म आना my चाहिए. hand. बैटिंग करेगा. What a match full of drama. We nailed it. We nailed it. पर एक चीज पंजाबी में जिस चीज को कहते हैं रॉन्ची पीटना, बेन स्टोक्स का लिटरली रॉन्ची पीट रहा था. He was crying there, begging the batsman to go home. हो गया, ड्रॉ कर लो भाई. जडेजा और सुंदर इतनी मेहनत करके they've reached their 80s. They deserve to get their hundreds. Who are you to tell them that they should go back home and they need to shake hands on this? Who are you to say that? He's an egoistic English captain. क्या कोई ज़रूरत नहीं है. तुम मतलब एक तरफ को you've played so well. You've I know, had an yeah. amazing series up until now. You've by far been the best bowler of the English side. You have scored 140 in this match, and you've also taken a fifer. After that, when you do things like these, it does not suit your stature. Exactly. I mean, for the fact, brilliant figures on the scorecard, but sportsmanship के नाम पे zero. But it has been a game of a lot of breaks. नहीं क्या बोला था? Full of breaks. It has been a match full of breaks. सबसे पहली चीज़ जो टूटी, a lot of records. दूसरी चीज़ जो टूटी, ऋषभ पंत का That टो. was painful. तीसरी चीज़ जो टूटी, English ego. absolutely मज़ा आ गया. गिल और राहुल के बारे में क्या बोलना चाहोगे? Rahul, I think, should be named the wall of India. वो I think जो उसने किया है टीम के लिए, the runs he scored, the pillar he is for the test team specifically is amazing. मतलब राहुल के लिए एक चीज़ और मैं कहूँगा कि he scored more than 500 runs in this series. 200 हैं उसमें और वो ओपन करता है. So जितना मुश्किल टाइम उसने स्पेंड किया है पिच पे, किसी और ने नहीं किया इस पूरी सीरीज में. तो what he has done, his 500 runs are way more than what anybody else has scored. By that I mean Gill, who has scored 722 runs in 4 matches. Hats off, not taking anything away from him. He has been exceptional. कैप्टनसी कर रहा है, साथ में इतने बढ़िया रन बना रहा है, 400 मार चुका है. And then ये वाला 100 which came in this match, I think by far has been the best 100 of his in his career. Oh yes. जितने बॉडी ब्लोज उसने आज And लिए, the toughest also. and the toughest, जितने बॉडी ब्लोज उसने लिए, जिस टाइम पे ये 100 आया है, when they were defending and when they were fighting to save the match. Hats off. Captaincy आ जाएगी धीरे धीरे, it will get better, but to bat like this, it is exceptional. At that age, I mean, amazing. अभी तक मैक्सिमम रन इन अ सीरीज का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के पास है, where he scored 770 or 780 in his debut test series in West Indies in 1971. और वो 4 मैच की सीरीज थी, उसमें ही स्कोर्ड 770. गिल in these 4 matches has already scored 722. He can easily get another 60-70 runs in the next match and bypass सर सुनील गावस्कर. तो एक SG दूसरे SG का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए That's a good one. poised बैठा हुआ है. But थोड़ा सा disappointing on the bowling side, I feel, where we could have done much better on the pace side. Yes, पेस बैटरी हमारी वीक रही है. ठीक है, दिस वाज अ बैटिंग पिच वाला टाइप ऑफ अ गेम, जहाँ पर ओल्ड ट्रैफर्ड के जो क्यूरेटर्स थे उन्होंने डेफिनेटली इंग्लिश टीम के कहने पे ही बनाई होगी ये पिच, पाटा हाईवे. बट इट वाज नॉट that Pata as you would expect it to be. There were cracks in the pitch. The odd ball was keeping low और विकेट्स गिर भी रहे थे. राहुल का विकेट ऐसे ही गया आज. बट इंडियन बॉलर्स कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए उसका, तो दैट इज़ अ कंसर्न. बुमराह की डेफिनेटली बॉडी उसका साथ नहीं दे रही है, उसकी पेस भी कम हो गई है, तो 5th मैच पता नहीं खेलता है नहीं खेलता है. बट बुमराह knows best. उसको But पता they है. are saying he might retire after the 5th match. If Like he I plays said, that. Bumrah knows his body best, Yeah. and he is the one who will take a call there. But only from the red ball, which is the good part. हाँ, अगर उसको लगता है कि उसे शॉर्टर फॉर्मेट ही खेलना चाहिए, इट्स बेटर, लॉन्जेविटी बढ़ेगी, तो व्हाई नॉट. बट ऋषभ पंत यार, Every time the world thinks he is disappointing, he proves us wrong. And full respect to that guy for whatever he does for the country. The level of strength internally and externally he showed on the field is amazing. to come down there and play with a broken toe, fractured toe, and then score a 50, that shows what he's made of. Gautam Gambhir easily praise नहीं करता है players को. बिल्कुल. But what he said in the dressing room is again not very Gambhir like. To specifically call out Rishabh Pant and say I'm someone who never speaks of individuals, but what he has done today is an inspiration not just to the dressing room but to the entire nation
and to the future generation. Yes. बहुत बड़ी बात है. Speaking of something positives on the English side, Joe Root, what a man of calmness and composure. नाम में ही रूट है तो रूटेड तो है काफी. Absolute credit to the game, Joe Root. मतलब he right now is the greatest test batsman to be playing. He is the second highest run getter in tests right now, sitting comfortably between Ricky Ponting and Sachin Tendulkar. What a place to be in. And he's only 34 years and 207 days old. तो इस रेट पे he can easily surpass Sachin. सिर्फ 2500 रन और रह गए. I see him doing that if there are no injuries. डेजवू हो रहा है मेरे को. क्यों? ऐसा ही हमने बोला था कोहली के लिए और रिटायर हो गया था वो. But I Joe miss Root- Kohli, man. Joe Root, the kind of form he's been in since 2021. He is so much different Sachin? from the English cricket team, Gentleman. nature-wise. True gentleman True Joe Root ही gentleman, है. yeah. बाकी सब जो रूट हैं बाकी ये सब- रूठे हुए हैं ना. यही है जो रूट. Actually. But और भी बहुत कुछ हो रहा है इंग्लैंड में. इंग्लिश प्रीमियर लीग आ रहा है. Yes, और sir. इंग्लिश प्रीमियर लीग आ रहा है इसका मतलब है कि सब टीम्स अपनी नई जर्सीज लेके आ रही हैं. और नई जर्सीज मतलब नया फैशन. और हम करेंगे Jersey review. लैपटॉप लाया जाए Let's do this. और लैपटॉप के साथ चश्मा भी पहना जाए क्योंकि ये तो दिखाने के दांत हैं. ये खाने के दांत हैं. मैं क्यों उतार रहा हूँ? पता नहीं. अरे आपके पीयर प्रेशर में यार. साफ साफ What देखने के a चक्कर में. style. तो चलो शुरू करते हैं जर्सी रिव्यू. All right, let's go. सबसे पहले शुरू करते हैं इस बार के चैंपियंस लिवरपूल. Liverpool. I actually liked the jersey. लिवरपूल की जर्सी टू बी ऑनेस्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है मार्केट में बिकॉज दे आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद नाइकी. बेसिकली नाइकी वाज देयर लास्ट स्पॉन्सर. अब उनका नया स्पॉन्सर नेक्स्ट सीजन से एडिडास होने वाला है. बट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट दे कैन नॉट लॉन्च देयर न्यू जर्सी टिल 1st of August. बट वी लिव इन द एज ऑफ द इंटरनेट और चीज़ें लीक हो जाती हैं. और वैसे हम तो हैं ही gossipers. जर्सी लीक हो चुकी है. तो इफ यू लुकिंग एट द जर्सी राइट नाउ इट इज़ वेरी रेमिनिसेंट ऑफ द टाइम व्हेन जेरार्ड एंड टोरेज वर एट देयर प्राइम. What a time, man. 2007 आई वाज इन कॉलेज. सेकेंड ईयर में था मैं. How old are you? बहुत टाइम हो गया 20 साल हो गए bro. 20 years. पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं इस जर्सी को देख के. बाय फार माय फेवरेट. Mine was actually Newcastle. हाँ. Black and white, but जो black and white का transition हो रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा blending in black. So it's very basic, but it's standing out for some reason. काली सफेद पट्टी वैसे एक और चीज को सिग्निफाई करती है. कह दी bro. ये प्रेम कह दी है ये. What about Manchester City? ब्यूटीफुल जर्सी. क्लासिक. उनका जो स्काई ब्लू है इट इज इन इटसेल्फ Basic है. बेसिक और क्लासिक में धागे भर का फर्क होता है. तो ये धागा बीच में से जा भी रहा है. पेंट ब्रश मार दिया है ना. मतलब चलो ठीक है जिसके पास जितना बजट. आप लोग सोच रहे हो हम बार बार फोन में क्यों देख रहे हैं. ये हमारा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है. 3 बार हो चुका है यार. What about Arsenal? The Gunners. ब्यूटीफुल अवे जर्सी. ये जो इलेक्ट्रिक ब्लू है बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड देन दोज 3 स्ट्राइप्स ऑन द शोल्डर्स इन दैट नियॉन पिंक. Vibrant. वाइब्रेंट. Silver and blue and pink. And comes your favorite. उससे पहले अच्छा फिर चेल्सी बहुत बेसिक है यार. अरे स्पॉन्सर्स ही नहीं है. इतना अमीर क्लब है उन्हें चीफ स्पॉन्सर चाहिए नहीं. तो किड स्पॉन्सर champions- से ही हो जा रहा है उनका. The champions. फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीते ना वो World Cup, लोग. हाँ but तो- very basic. अच्छी है जर्सी. इट्स नॉट बैड. मतलब ये वाली फैन जर्सी भी ऐसी बट होती है. इफ यू सी थोड़ा ध्यान से इट्स प्रीटी इंट्रिकेट. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेडेशन, अ लॉट ऑफ टेक्सचर इन देयर. सो इफ यू लुक अप क्लोज इट्स एक्चुअली अ प्रीटी नाइस वन. And now comes your favorite. अभी तक वी जस्ट स्पोक ऑफ द टॉप 5 टीम्स फ्रॉम लास्ट सीजन. ये जो छठी टीम है ये टॉप 10 में भी नहीं थी. बट इसको हमने रखा है अपने भाई का दिल रखने के लिए. United fan bro. Once upon a time. बचपन का प्यार मेरे बचपन का रूडी और बेकहम वाला जमाने का हूँ मैं. जर्सी वैसी है जैसी होती है. इधर उन्होंने स्नैपड्रैगन लगा के लग रहा है टीम की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी. And the theater of dreams, it will always remain a dream. फॉर देम टू विन अगेन. नजर बट्टू भी लगा है देखो काले रंग का गले पे. कौन लगा रहा है इनको नजर? नजर इनको लग चुकी भाई. ये तो बात हो गई इंग्लिश प्रीमियर लीग की जर्सीज की. बट इंग्लिश प्रीमियर लीग में बहुत जबरदस्त ट्रांसफर्स भी हो रहे हैं बैक टू बैक. Yep. पिछले वीक देयर हैज बीन अ बिग ट्रांसफर अगेन. सो अ प्लेयर अगेन कमिंग टू लिवरपूल फॉर 79 million pounds. Hugo Ekitike. क्या नाम है? ह्यूगो एकिटीके. Yeah, that's the name. सब ठीक है. सब ठीक है. ह्यूगो. But गरीब में बिका है यार. 79 मिलियन में ही बिका है. अरे नहीं यार ये तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट हो गया वो Actually, फ्लोरेन वो वर्ड्स की अपना वजह से. था, बट Hugo Ekitike happens to be a striker from France, Yep. 22-year-old. He was playing at Frankfurt. और वहाँ से he is coming to Liverpool. High expectations. Yep. Let's see what he does. And the next is João Felix. Yes, जाओ फिलिक्स को बोल दिया गया कि बेटा जाओ चेल्सी से दूर. So जाओ फिलिक्स has
Gone to the Habibi land. So yeah, Joao Felix is basically going to Al Nassr. Yeah. Ronaldo, give me a pass, brother. From Europe to Asia. एशिया से याद आया यार, एशिया कप. क्या India, बोलूं? you know the date? September 14th. We have lost faces. Our faces. मतलब कैसे यार, मतलब एक तरफ को WCL की टीम स्टैंड लेती है कि हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, और यहाँ पर एशिया कप का मैच अनाउंस हो रहा है. I think हाँ, it's a very, I don't know what to say. I think कुछ ACC का कमिटमेंट है. Being the host nation, you cannot withdraw from the group stages. That is the reason why they. End of the day, I'm not denied end it. of the day, BCCI पैसा तो बनाना चाहती है, but Could be. अभी तक BCCI ने officially कुछ बोला नहीं है. So let's see what happens. ये in the टेस्ट coming मैच days. सीरीज खत्म होने तो तब बात करते हैं. इंडिया पाकिस्तान ड्रामा तो यार देखो सदियों से चलता आ रहा है, और one more example is in Bollywood. Oh, are you referring to the Nadania boy? भाई छोटे नवाब की नादानियां खत्म नहीं हो रही हैं, सर से लेकर जमीन तक हगा है. सर जमीन लेकर आए हैं इब्राहिम अली खान, प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा. मतलब क्यों? दिस मूवी इज फुल ऑफ वाइज. जो आपने बोला क्यों, वाई दिस मूवी, वाई दैट स्टूपिड प्लॉट ट्विस्ट, वाई दैट स्टूपिड बियर्ड. मतलब मिशन कश्मीर फ्रॉम मीशो. थोड़ी बताओ, थोड़ी, अब दे ही रहे हैं, स्पॉइलर तो दे देते हैं. अरे यार, मतलब उन्होंने फैमिली मैन, उरी, मिशन कश्मीर सब कुछ मिला दिया है. पहले तो मतलब मूवी बनाई ही क्यों है ना. What happens is पृथ्वीराज और काजोल are parents to Ibrahim Ali Khan, who happens to be a very timid and shy and weak sort of a boy. और पृथ्वीराज is in the army and is serving in Kashmir. तो उसके लिए उसका बेटा being weak is a very big issue. होता क्या है कि पृथ्वीराज अपना एक टेररिस्ट को ट्रैक कर रहा है, और उसको क्रैक करने के चक्कर में थिंग्स हैपन एंड हिज सन गेट्स किडनैप्ड, और वो 8 साल बाद वापस आता है इब्राहिम अली खान बन के. बाय द टाइम इब्राहिम अली खान कम्स बैक, ही इज़ बिन ब्रेन वॉश्ड, और ही इज़ ऑल्सो बेसिकली वन ऑफ द टेररिस्ट्स. और वही सब मूवी की स्टोरी है कि कैसे ये पूरी मिशन कश्मीर है बिल्कुल यार. मिशन कश्मीर है. जैसे मिशन कश्मीर में जैकी श्रॉफ ब्रेन वॉश करता है ऋतिक रोशन का, यहाँ पर इसका भी एक चाचा है जो इसका ब्रेन वॉश करता है. बट सबसे बुरा पार्ट पता है क्या है? स्पॉइलर अलर्ट तो मैं बोल ही चुका हूँ कि जिस टेररिस्ट को पूरा टाइम ट्रैक किया जा रहा है, मूसा नाम का टेररिस्ट, जिसने सारे टेरर अटैक्स प्लान किए थे, वेदर इट वाज अक्षरधाम, वेदर इट वाज पार्लियामेंट अटैक, इंटरेस्टिंग. दैट हैपेंस टू बी काजोल, अरे गुप्त हो गया ये तो. माँ ऑफ इब्राहिम. मतलब यार मैंने सिर पकड़ लिया अपना यार. मतलब व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस स्टूपिड प्लॉट ट्विस्ट? What was the need of this movie? एब्सोल्युटली. मतलब पूरी पिक्चर में मेरा बेटा कहाँ है, मेरा देश कहाँ है, मेरी स्क्रिप्ट कहाँ है? मेरी स्क्रिप्ट कहाँ है, पूरी पिक्चर में यही चल रहा है. टॉकिंग ऑफ द एक्टर्स, काजोल इज द सेविंग ग्रेस ऑफ द मूवी. उसी को एक्टिंग आती है. पृथ्वीराज भी थोड़ा बहुत ठीक एक्टिंग कर रहा है. बट यार इब्राहिम अली खान, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज. नादानियां छोड़ दो छोटे नवाब. एक बार गलती हो सकती है, 2 बार नहीं हो सकती. यार उसकी बहन से भी बहुत बार हुई है. तो मुझे तंग करने तो लगे मुझे हो. तंग कर रहे हो. नहीं यार, मतलब छोड़ देना चाहिए अब उसको. He should do modeling. He's a great model. ही इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय. डायरेक्टर को लग रहा है कि ऑडियंसेस बेवकूफ है, वो कुछ भी बनाएंगे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे. कायोजी ईरानी happens to be the son of Baman Irani, who's That is directed the movie. disappointing. I think we should make an appeal to all the directors that your audience is not dumb. Yes. We have evolved over time. I know drama is है Bollywood में ज़रूरी है, but don't make it dumb for the audience. If you really want to watch something that is patriotic and at the same time considers your intellect or considers you as a sensible person as a viewer, watch Special Ops 2.0. 2.0. Himmat Singh is back, bro. What an actor, KK Menon. Amazing series. नीरज पांडे का नाम है इसके साथ, तो Yeah. obviously चीज़ तो अच्छी होगी ही ना. मतलब नीरज पांडे ने कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट भी किए हैं, प्रोड्यूस तो उसकी कंपनी कर ही रही है. Nice. Such a gripping story, and this time round it is not what you would expect it to be. It is about cyber crime and cyber warfare. How a nation's entire economy is at stake because of a cyber war that's going to happen. मतलब future change हो रहा है. AI is the villain. AI is the villain in the movie. Like people won't fight wars. The technology would be the biggest weapon. Yes, absolutely, and that is what they're showing. It's new age. It's not over the top. The actors are doing a magnificent job. The antagonist of the series, Tahir Raj Bhasin, hats off to this guy. He is so underrated, I feel. He made a debut with Mardani, where he was the antagonist too. उसके बाद भी उसने he's done amazing work, but again he hasn't got his dues yet. You have to give it to him. जितना शांति से वो काम करके जाता है ना, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, just his expressions and his body language, way too good. And the story is so gripping, right? It keeps you guessing कि अब क्या होगा. You want to know. You are at the edge of your seats. You talk of the star cast, man. Apart from these two guys, there is Prakash Raj, such an amazing actor, such depth to his performance. There is Gautami Kapoor.
Oh nice, राम कपूर की हाँ, हिम्मत सिंह की वाइफ बनी है इसमें. Nice. There is Kuljit. there is परमीत सेठी. City, yeah. I love him, yeah. हाँ, तो उसका भी अच्छा रोल है. There उनके is व्लॉग्स देखे हैं आपने? वो भी बहुत अमेजिंग है. हाँ, the whole family. Amazing. There is Vinay Pathak. There is Dilip Tahil. तो Madan Chopra. तो बढ़िया एक्टर्स हैं इसमें सीरीज में एंड दे आर डूइंग सम ग्रेट वर्क देयर. इफ यू टॉक ऑफ द लोकेशंस, दे हैव शॉट इन ऑस्ट्रिया, दे हैव शॉट इन जॉर्जिया, दे हैव आल्सो शॉट इन डोमिनिका. Big budget. यस, एंड एक्शन सीक्वेंसेस ब्रेथटेकिंग. एक्शन से याद आया, एक बहुत हाइप्ड मूवी 14th अगस्त को आने वाली है. उसका सेकंड ट्रेलर आया है, वॉर 2. भाई उसके ट्रेलर से ना मुझे उसका टीजर ज्यादा अच्छा लगा. उस टीजर से पहली वाली मूवी बेटर थी, वॉर 1. आई मीन सो डिसअपॉइंटिंग यार. अयान मुखर्जी, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, मतलब एक्चुअली मुझे लग रहा है वो बस के लिए था क्योंकि सब कुछ तो उसने टीजर में ही दिखा दिया था. अरे दिखाया भी तो, देयर वाज नो गूज़बम्प्स यार. ऋतिक रोशन की एंट्री ही किसी भी मूवी में हो, इट्स लाइक आने चाहिए ना गूज़बम्प की. ऋतिक रोशन चल के आ रहा है कुत्ते के साथ. कुत्ता नहीं है, भेड़िया. अरे मतलब तुम देख लो कि देख लो कि क्या हो रहा है. मतलब भाई को इतने गंदे लगे वीएफएक्स, भेड़िया भी कुत्ता लग रहा है. अरे मतलब इट्स डिसअपॉइंटिंग. एंड इवन द विलेन हल्का पड़ रहा है बहुत. एनटीआर बनने चला था हल्क, पड़ गया हल्का. हल्के से याद आया ओ या श्री श्री हल्क होगन को, सॉरी आरआईपी श्री श्री हल्क होगन है, हल्क होगन है, हल्क हॉगन होगन हॉगन हॉगन. हाँ, श्री श्री हल्क होगन को आरआईपी. There's 52 Clash. रेस्ट इन पीस सर. हाँ. बट गाइस, आप लोग हमें सपोर्ट करो, लाइक करो, Please, शेयर करो, please. सब्सक्राइब करो, नहीं तो हमारा चैनल कहीं रेस्ट इन पीस ना हो जाए. Yes, please. वैसे थैंक्स फॉर द व्यूज ऑन द लास्ट वीडियो. Thank you. You guys have been supporting. Love us, hate us, don't ignore us. Like, share and subscribe.